Assalamu alaikum, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss prokaryotes versus eukaryotes as well as viruses. Means what are actually a general characteristics of prokaryotes, eukaryotes and viruses, and what are the major differences between them as well. So prokaryotes क्या हैं, उनके क्या characteristics हैं, eukaryotes के characteristics कौन कौन से, and then viral characteristics, and we will also differentiate between all of them as well. First means what are the prokaryotes. Prokaryotes contains like no membrane, means there is no membrane bound nucleus in the prokaryotes. Has cell wall. prokaryotes में या बैक्टीरिया उनकी एग्जांपल है, सेल वॉल मौजूद है, राइट. ओनली अ फ्यू ऑर्गेनेलीज को बहुत कम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं बैक्टीरिया में या प्रोkaryotes में, एंड दे आर नॉट इवन वी कैन से इनक्लोज्ड विद इन अ पार्टिकुलर मेम्ब्रेन्स एज वेल. फर्दर हैज कैप्सूल सराउंडिंग इट. तो बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और उनके सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोkaryote एज वेल. There are three main types, means there are three main types of the capsules in a prokaryote, okay. And so here if we will discuss the eukaryotes contains actually nucleus with membrane, means in eukaryotes there will be a nucleus with a particular or proper membrane. Only plants have cell wall. Plants जो cell हैं उनमें cell wall मौजूद होती है, and that will be composed of cellulose in case of eukaryotic cells. But in case of prokaryotic cells, the cell wall will be composed of we can say polysaccharides, okay, like which includes like NAS units and NAM units. We already discussed nicotine amine, glycosamine, and nicotine amine. We can say muramic acid as well. Contains many organelles. तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं. हैज लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाई लेयर है, उसमें लिपिड्स भी मौजूद हैं और प्रोटीन भी मौजूद हैं, और उसको हम बेसिकली लिपोप्रोटीन भी कहते हैं. स्पेशलाइज बाई 1000 ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि हम लोग के स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टाइप्स के सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि यूकैरियोटिक्स का या यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का एक मेजर कैरेक्टर है. But in case of viruses, there is no nucleus, means the DNA is properly dispersed in a circular fashion or sometimes in a helical fashion in the viruses. No membranes, there are no membranes, like there is no nuclear membrane, no organelles, cellular organelles भी proper नहीं होती. There are improper cellular organelles, means some of the constituents of cellular organelles are only present in the virus. Viral structures okay cannot reproduce on its own. तो viruses reproduce नहीं हो सकते, means वो अपने आप खुद ही multiply नहीं हो सकते, but they require host for their multiplication. Generally not considered alive by most standards. तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, viruses are not alive, but some consider viruses can live or alive. So if we will properly define them, so we place them, means viruses are those entities which can survive in living as well as in non-living environment. So once they will get a favorable place, then they will grow properly, okay. Further, some of the general viral properties. Virus are inert. Nucleoproteins filterable agents मौजूद हैं इनमें, means they are inert. नॉन रिएक्टिव कहते हैं शुरू में न्यूक्लियोप्रोटीन्स मौजूद होने की वजह, लेकिन इनर्ट से मुराद ये नहीं है कि दे विल नॉट बी रिएक्टिंग विद द होस्ट, मींस दे कैन इन्फेक्ट द होस्ट, बट दे आर इनर्ट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट देयर ओन. Viruses are obligate intracellular parasites. We already discussed, okay. Virus cannot make energy or protein independent of a host cell. Host cells के बगैर viruses energy भी produce नहीं कर सकते और ना ही proteins बना सकते हैं. But once they will be using host synthetic machinery, so they will be utilizing host nutrients or host cellular constituents to grow at their own. Viral genomes are RNA और DNA, but not both. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरसेस में जो DNA है वायरसेस होंगे या RNA वायरसेस होंगे. ऐसा नहीं होगा कि DNA वायरसेस भी हो और उसमें RNA दोनों भी मौजूद हों, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेलुलर करेक्टर. सेल के अंदर दोनों DNA या RNA एक टाइम पे वायरसेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. कुछ RNA पॉलीमरेजेस मौजूद होंगे या कुछ DNA पॉलीमरेजेस मौजूद होती हैं. तो क्योंकि अगर दोनों मौजूद होंगे तो एक ही तरह के एंजाइम्स होने की वजह से फिर DNA या RNA डिग्रेड हो जाता है. कुछ हेलिकेजेस या हेलिकेजेस या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेजेस एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं. तो उनकी वजह से, उनकी मौजूदगी की वजह से या तो फिर DNA सर्वाइव कर सकेगा या RNA. तो इसी वजह से या तो वायरसेस DNA
होते हैं वायरसेस होते हैं या RNA वायरसेस, बट दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज DNA वायरसेस एज वेल एज RNA वायरसेस, मींस containing both of the nucleotides at the same time. ठीक है. Viruses have a naked capsid or envelope with attached proteins. तो वायरस का ऊपर कैप्सिड होता है जिसको हम कवर भी कहते हैं और वो प्रोटीन से बना होता है. वायरसेस डू नॉट हैव द जेनेटिक कंपेटिबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय डिवीजन. वायरसेस के पास इतनी स्किल एबिलिटी नहीं है कि वो खुद उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट विल रेप्लिकेट एट देयर ओन और उनमें सेल डिवीजन हो, बल्कि वो होस्ट का क्या करते हैं कि सेलुलर कंटेंट को यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी में अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, अपनी DNA की कॉपीज़ बनाते हैं. वायरसेस और नॉन लिविंग एटेंटिटीज. तो वायरसेस को नॉन लिविंग एटेंटिटीज भी कहते हैं कि ये नॉन लिविंग भी होती हैं, लेकिन बाद में ये जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये लिविंग भी एक्ट करते हैं. Viruses are ultra microscopic, means we can only visualize viruses by using ultra radiations और UV radiations यूज़ करके, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती हैं. जैसे हम देखें ये स्टेफिलोकोकस है, हर्पेस वायरस हम देखेंगे तो हमें इतना सा साइज़ नज़र आएगा, लेकिन स्टेफिलोकोकस का साइज़ इतना बड़ा नज़र आएगा. इन्फ्लुएंजा वायरस का साइज़ अगर हम 0.2 माइक्रोमीटर की बात करें, सेलुलर साइज़ की बात करें, तो जो क्लैमिडिया एलिमेंट्री बॉडी है वो इतनी नज़र आएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. लेकिन पॉक्स वायरस का साइज आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्मॉलर वन. पोलियो वायरस साइज इज मच स्मॉलर वन. सो ये वायरसेस की कुछ साइजेस हैं और ये हम यहाँ पे बताया गया कि ये बैक्टीरिया के साइज की एक्चुअली बात हो रही है. तो यहाँ पे बताया जाता है कि वायरसेस का जो साइज है दे आर वेरी मींस डेलिकेट एंड दे आर टाइनी एज वेल. Size is the size of viruses. This table was also discussed in previous lectures. So यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10⁻⁻⁴ में जब हम बात करते हैं तो फिर हम प्लांट सेल्स को, एनिमल सेल्स को और या फिर बैक्टीरिया और वायरसेस को जाके स्टडी कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम प्रॉपर्टी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और सेलुलर ऑर्गेनेलीज विजुलाइज नहीं कर सकते. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज या सेल के जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको प्रॉपर विजुलाइज कर सकते हैं. तो दैट्स वाई वी कैन से वायरसेस साइज रेंजेस in the form of 10⁻⁻⁶ up to 10⁻⁻⁹ as well. Okay, further X-rays भी यूज़ की जाती हैं for the determination of atomic sizes. एटम्स का साइज अगर आपने फाइंड करना है तो एक्स-रेज यूज़ करते हैं, और NMR भी एनालिसिस भी किया जाता है, और ये भी एटॉमिक स्टडीज़ में ही किया जाता है. ओके, फर्दर विजुअल स्ट्रक्चर्स, सम टर्मिनोलॉजी. वायरस पार्टिकल्स को हम वायरान भी कहते हैं कि ऐसे वायरसेस जो कि पार्टिकुलेट नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में, स्पोरस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उनको वायरान भी कहते हैं. प्रोटीन्स विच कोर्स द जीनोम आर नोन एज कैप्सिड्स. तो जो वायरल प्रोटीन है, जैसे मैं यहाँ पे एक वायरस की सपोज वायरस ड्रा करता हूँ कि दिस इज़ अ वायरस. ओके, इस वायरस के अंदर यहाँ पे कुछ जीनोमिक मेकअप या DNA मौजूद है या RNA मौजूद है, लेकिन इसका ये जो कोड है, ओके, इस कोड को हम एक्चुअली क्या कह सकते हैं, इसको कैप्सिड कहेंगे, क्योंकि ये जो जीनोम है उसको क्या कर रहा है, कोड कर रहा है. सो दिस इज नोन एज अ कैप्सिड. ओके, कैप्सिड यूजली एसिमेट्रिकल, तो इसकी कैप्सिड की कोई सिमेट्री नहीं होती कि ओवल शेप में होगा, राउंड शेप में होगा, हेलिकल शेप में होगा. तो दिस सिमेट्री विल वेरी इन केस ऑफ वी कैन से वायरल स्ट्रक्चर. कैप्सिड प्लस जीनोम इज न्यूक्लियोकैप्सिड. अगर हम इस कैप्सिड को और जीनोम दोनों को कंबाइन ऐड करना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड, कि कैप्सिड के साथ जीनोम को भी इनकोड किया जा रहा है. मे हैव एन इन्वेलप, तो कुछ वायरसेस के ऊपर यहाँ पे कैप्सिड्स के ऊपर बाहर भी एक इन्वेलप मौजूद होता है, ये वायरसेस को प्रोटेक्ट करता है और वायरस की जो पैथोजेनिसिटी है वायरसेस की उसको भी इंक्रीज करता है. वायरॉन्स क्या होते हैं, द कंप्लीट इन्फेक्शियस यूनिट ऑफ वायरस पार्टिकल्स. कि वायरस पार्टिकल एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस यूनिट्स है, कि अगर एक वायरन पार्टिकल या वायरस का पार्टिकल कहीं पे किसी की बॉडी में इंटर हो जाता है, किसी लिविंग सेल में इंटर हो जाता है, तो दैट कैन इन्फेक्ट एट अ सर्टन एक्सटेंट. तो वो एक सर्टन एक्सटेंट पे डिजीज काज कर सकता है. सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ वायरॉन विच कैन इवन काज अ डिजीज. फर्दर वायरॉन का स्ट्रक्चर आप देख लें तो यहाँ पे आपको सही कंप्लीट समझ आ जाएगी कि ये इन्वेलप है. ओके, दिस इज एक्चुअली अ इन्वेलप लाइक ओवर हियर एंड देयर इज अ कैप्सिड. ये अच्छा, ये न्यूक्लियर कैप्सिड की बात हो रही है कि जो जीनोमिक मेकअप है उसके ऊपर एक कैप्सिड मौजूद है और ये प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लिक एसिड्स को. और फिर हम वायरल जीनोम की बात करते हैं तो ये वायरल जीनोम जो वायरस के अंदर DNA या RNA मौजूद होता है, दैट इज नोन एज वायरल जीनोम. So this was part B of lecture number 9. So if you have any queries or questions, you can post your questions in comment box. Stay tuned. Allah Hafiz.